معروف بلدیاتی رہنما اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی CBA کے صدر سید ذوالفقار شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ کی بیوروکریسی نے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو ماموں بنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے گرانٹ منظور کی، بیوروکریسی نے گرانٹ کو قرضے میں بدل دیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ عظمیٰ کراچی مالی بحران کا شکار، حالات ابتر ہو گئے۔ KMC کے فنڈز میں پہلے ہی 5 کروڑ روپے کا شارٹ فال اور اب نظام چلانے کے لیے ماہانہ ملنے والے شیئرز میں بھی 5 کروڑ روپے کی کٹوتی کی جا رہی ہے۔ ماہانہ 10 کروڑ روپے کا شارٹ فال اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ اب اداروں کو ادائیگی کے قابل نہیں رہی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی سوداکاری یونین کے صدر سید ذوالفقار شاہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی نے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو ماموں بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ کے گرانٹ جاری کرنے کے احکامات کو لون کا لفظ دے ڈالا کہ یہ اپنے ہی لگائے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ سندھ حکومت کی بیوروکریسی نے ہاتھ کر دیا، اور ہاتھ بھی اس طریقے سے کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے 1.5 ارب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے انہیں بطور گرانٹ دی تھی، جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں گیا تو انہوں نے اس گرانٹ کو جو ہے وہ لون میں تبدیل کر دیا۔ اب ہر ماہ 5 کروڑ روپے کی کٹوتی ہو رہی ہے، مسلسل تیسرا مہینہ ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ٹھیکیدار نے تو 2 ماہ کی عدم ادائیگی پر ڈیزل کی فراہمی بھی بند کر دی ہے، جس کے باعث لازمی سروس کے ڈپارٹمنٹ شدید متاثر ہیں۔ ہم تو تیار ہوتے ہیں، اپنے ٹائم ٹو ٹائم ہم بیٹھے رہتے ہیں یہاں پہ، مگر اس ٹائم ایک ایشو یہ ہے کہ ہمیں ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، فیول نہیں ملا۔ تو جب گاڑیوں میں فیول نہیں ہوگا تو ہم جائیں وقوع پہ کیسے پہنچیں گے؟ ڈیزل 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا، نہیں مل رہا ہے۔ اگر ڈیزل موجود ہو گاڑی میں تو کوئی بھی ایمرجنسی کو ہم فیل کر سکتے ہیں، نہیں ہوگا ڈیزل تو ہم کسی بھی ایمرجنسی تک نہیں پہنچ سکتے۔ بیوروکریسی کی نااہلی کے نتیجے میں حکومت سندھ کو کئی محاذ پر سبکی کا سامنا رہا، جس کا فوری سدباب وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیمرامین کاشف خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ سندھ میں 2.5 ماہ بعد بھی گیس بحران ختم نہ ہو سکا۔ کوٹی کے قائم مقام صدر ماہین سلیمان کا کہنا ہے کہ سوئی صدرن گیس کو ڈسٹریبیوشن نظام میں بہتری کے لیے اخراجات کرنا ہوں گے۔ صنعتکار مسعود نقی نے کہا ہے کہ صنعتیں چلیں گی تو ہی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ سندھ کے صنعتکار گیس بحران سے تاحال پریشان۔ کراچی کے صنعتی زون میں گیس پریشر کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہو سکا۔ کورنگی ایسوسی ایشن اور ٹریڈ انڈسٹری کی قائم مقام صدر ماہین سلمان کا کہنا ہے کہ گیس نہ ملنے سے صنعتی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ اب سوئی صدر گیس کو گیس پریشر بحالی کے لیے اقدام علاقے میں پائپ لائن تبدیل کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ آپ نئی لائنیں ڈال سکتے ہیں، جو پرانی لائنوں میں لیکیج ہو رہی ہے یا کوئی پرابلمز ہیں آپ ان کو ریفربش کریے، ڈسٹریبیوشن سسٹم امپروو کریے۔ کیسے ہوگا کہ امپروو نہ ہو؟ ہاں یہ کہ آپ کیا میں نے انیشیٹو میں SSGC کا اپریشیٹ کروں گی دیٹ دے آر لوکنگ فار آلٹرنیٹ سورسز، بٹ آلٹرنیٹ سورسز از اے لانگ ٹرم سولوشن نا، تو اچھی بات ہے کہ ہم لانگ ٹرم سوچنے لگے ہیں، مگر یہ کہ شارٹ ٹرم میں بھی ہمیں کوئی سولوشن کوئی چیز چاہیے، کیونکہ ہم انڈسٹری فوراً آلٹرنیٹ کے اوپر سوئچ نہیں کر سکتے۔ کارٹی کے سابق صدر مسعود نقی نے کہا کہ کراچی کے ساتھ انڈسٹری زونز میں گیس پریشر طلب کے حساب سے نہیں مل رہا۔ کوئٹہ اور بلوچستان میں سردی اور گیس کی طلب کم ہونے سے ہی فائدہ مل سکتا ہے۔ اگر برآمدات میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے پلاننگ بھی کرنا ہوگی۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ناردرن ایریا میں بلوچستان میں سردی کا پریشر کم ہوگا اور وہ جو گیس وہاں پہ ریکوائرڈ ہوتی ہے اس سیزن میں وہ ڈائیورٹ ہوگی تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن آج کی تاریخ میں ایز آف ٹوڈے 11 فیبروری کو یہ پوزیشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ملنے سے ڈیزل اور فرنیس آئل پر بوائلر چلانے سے لاگت میں اضافہ ہو گیا ہے، ساتھ ہی اب بجلی مہنگی ہونے سے بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ حکومت صنعتوں کا پہیہ چلانے کے لیے مربوط پلاننگ کرے۔ کراچی میں CNG پر گاڑی چلانے والوں کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے۔ سینئر نائب چیئرمین آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ CNG کی قیمت میں بھی 20 روپے فی کلو تک کمی کا امکان ہے۔ حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ CNG صارفین کے لیے دوہری خوشخبری، پیر سے CNG نہ صرف دستیاب ہوگی بلکہ قیمت میں بھی کمی ہوگی۔ آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن کے سینئر نائب چیئرمین شعیب خان جی کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کا اثر CNG پر پڑے گا۔ CNG کی قیمت میں فی کلو 20 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ CNG سیکٹر دوبارہ کھلے گا تو ہم نے 200 روپے پہ اس کو کلوز کیا تھا، اب انشاءاللہ جو ریٹ ہوگا وہ 180 یا 190 کے درمیان، جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہوگا۔ شعیب خان جی نے مزید کہا کہ بندش سے قبل CNG 200 روپے تھی، تاہم اب نیا ریٹ 180 سے 190 روپے کے درمیان رکھا جائے گا۔
DMC वेस्ट में म्यूनसिपल कमिश्नर की पोस्ट म्यूजिकल चेयरमैन बन गई है, तो चल में आया के बुनियादों पर अफसरान का आना जाना जारी है। बल्दिया गरबी में वसीम मुस्तफ़ा सोमरू को ओहदे से फारग कर दिया गया है। DMC वेस्ट में म्यूनसिपल कमिश्नर की पोस्ट म्यूजिकल चेयर बन चुकी है। तू चल मैं आया की बुनियाद पर अफसरान का आना जाना लगा हुआ है। बल्दिया गरबी में वसीम मुस्तफ़ा सोमरू को ओहदे से फारिग भी कर दिया गया है। बल्दिया गरबी में इशफाक अहमद मल्लाह को दोबारा म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं DMC वेस्ट में म्यूनसिपल कमिश्नर की पोस्ट म्यूजिकल चेयर बन गई है। तू चल मैं आया की बुनियाद पर अफसरान का आना जाना जारी है। बल्दिया गरबी में वसीम मुस्तफ़ा सोमरू को ओहदे से फारग कर दिया गया है। बल्दिया गरबी में इशफाक अहमद मल्लाह को दोबारा म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। DMC वेस्ट में म्यूनसिपल कमिश्नर की पोस्ट म्यूजिकल चेयर बन गई है। तू चल मैं आया की बुनियाद पर अफसरान का आना जाना जारी है। बल्दिया गरबी में वसीम मुस्तफ़ा सोमरू को ओहदे से फारग कर दिया गया है। यहाँ पर आपको आगाह करें, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती तैनात होते ही मुतहरिक हो चुके हैं। सैनिटेशन महकमे की हाजिरियाँ UC सेक्रेटरीज को दे दी गई हैं। UC सेक्रेटरीज को माहाना की बुनियाद पर हाजिरी रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती को पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। डायरेक्टर सैनिटेशन को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से हुक्मनामा सामने आया था, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी को जो है एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पोस्ट से जो है वो फारिग कर दिया गया था, जबकि इसका एडमिनिस्ट्रेटरशिप का जो चार्ज है वो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम को जो है वो इजाफी तौर पर सौंप दिया गया था। आज उनकी जानिब से एक अहकाम जो है वो जारी करने का सिलसिला शुरू हुआ। पहला हुक्मनामा उनकी जानिब से जो जारी किया गया है उसमें जो सैनिटेशन के महकमे को हिदायत की गई है कि उनकी तमाम जो हाजिरियां हैं उनके अमले की वो UC सेक्रेटरीज को सौंप दी गई हैं। UC सेक्रेटरीज इस सिलसिले में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और माहाना बुनियाद पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के उनको रिपोर्ट पेश की जाएगी और इस सिलसिले में डायरेक्टर सैनिटेशन को खुसूसी हिदायत की गई है कि वो इस हुक्मनामे पर जो है फौरी अमल दरामद कराएं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास को तब्दील करके गुलाम नबी मेमन को दोबारा कराची पुलिस चीफ बना दिया गया है। एडिशनल IG इमरान याकूब को CTD और जावेद आलम ओढ़ू को एडिशनल IG रिसर्च एंड डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम, पुलिस एहलकारों के जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस होने और तबादलों तकर्रियों में एतराज़ात की बिना पर कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास का तबादला कर दिया गया है। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन को एक बार फिर कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया है। एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास को CTD और जावेद आलम को एडिशनल IG रिसर्च एंड डेवलपमेंट तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जबकि गुलाम नबी मेमन ने पहली बार पुलिस चीफ बनने के बाद थानों की तादाद कम करने और मॉडल पुलिस स्टेशन बनाने का अमल शुरू किया था। ताहम इमरान याकूब मिन्हास ने बतौर पुलिस चीफ अपनी तैनाती के बाद मॉडल पुलिस स्टेशन ख़त्म कर दिए थे। कराची में 1200 कैदियों की पेशी के लिए सिर्फ 60 गाड़ियां दस्तयाब हैं। SSP कोट पुलिस आबिद कायम खानी की रिपोर्ट में अहम इंकिशाफ के बाद कोट पुलिस ने कैदियों के लिए मजीद 40 गाड़ियां और 30 ड्राइवर्स मांग लिए हैं। गाड़ियां ना होने के बायस कैदियों को प्राइवेट गाड़ियों में पेशी पर ले जाया जाता है। कोट पुलिस के SSP आबिद कायम खानी ने कहा है कैदियों के लिए मजीद 40 गाड़ियां और 30 ड्राइवर्स दिए जाएं। SSP कोट पुलिस की एडिशनल IG कराची को मरासला लिख दिया है। कोट पुलिस कराची सेंट्रल जेल, मलीर जेल, बच्चा जेल, खातीन जेल और अंदरून सिंध की अदालतों में कैदी पेश करती है। बेसहारा तालिब इल्म शनाख्ती कार्ड केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। तालिब इल्म एहसन की दरख्वास्त पर वफाकी वजारत दाखिला और डायरेक्टर जनरल नादरा को नोटिस जारी। वालिदैन न होने की वजह से नादरा ने 24 साला तालिब इल्म का शनाख्ती कार्ड बनाने से इनकार कर दिया था। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की, 4 साल से यूनिवर्सिटी में दाखिले की कोशिश कर रहा हूँ। शनाख्ती कार्ड ना होने से तालीम के हसूल में भी दुश्वारी है। वालिद और दादा के शनाख्ती कार्ड समेत तमाम दस्तावेज़ात देने के बावजूद शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किया जा रहा। मेरी वालिदा मुझे छोड़ के चली गई थी, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मैं फिर बड़ा हुआ, मुझे
पाला मेरे दादा दादी ने, चाचा ने पाला। मेरे वालिद नशा करते थे, ज़ाहिर है उनको कोई खबर ही नहीं होती थी किसी चीज़ की। फिर 2008 में उनका भी इंतकाल हो गया, फिर मैं बिल्कुल यतीम हो गया। फिर चाचा ने पाला, मेरी पढ़ाई जारी रही, पढ़ाई करता रहा। जब मैंने इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद जब मैं आगे गया हूँ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेने, उन्होंने मुझसे बोला कि आपको NIC चाहिए, NIC लेकर आओ, और NIC मेरे पास था नहीं। नादरा वाले यही कहते हैं अपने वालिद वालदा का NIC लाओ। मैं वालिद वालदा नहीं है तो मैं उनका NIC कहाँ से लाऊँ? मैं तो छोटा था, वालदा तो बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। तालीम ज़ाया हो गई, मैं इंटर किया हुआ है, मेरे 4 साल ज़ाया हो गए। अब तक तो मैं काफ़ी आगे तक होता है। यही चाहता हूँ कि मेरा NIC जल्द से जल्द बन जाए। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने कहा है कि बाखबर ज़राए से पता चला है कि वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक शंघाई इलेक्ट्रिक को फ़रोग़ कर रही है। सिंध हुकूमत शंघाई इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक को मुतनब्बिह करती है कि कोई भी मुआहिदा करने से पहले सिंध हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि ऐसा कोई भी मुआहिदा काबिल कबूल नहीं होगा जिसमें सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी शामिल ना हो। हुकूमत सिंध जानना चाहती है कि शंघाई इलेक्ट्रिक कितनी सरमायाकारी करेगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा। सूबाई वज़ीर ने कहा कि साबिक हुकूमत ने शंघाई इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात के मौका पर सिंध का नुमाइंदा शामिल किया था कि इलेक्ट्रिक के साथ लाखों सारिफिन मुंसलिक हैं। कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और सिंध हुकूमत इनके हकूक़ की ज़ामिन है। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवल्यूशन स्कूल तालीम शमीर खान भुट्टो का तबादला। शमीर खान भुट्टो एडिशनल सेक्रेटरी खजाना तैनात हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग इवेलुएशन स्कूल तालीम शमीर खान भुट्टो का तबादला कर दिया गया है। शमीर खान भुट्टो एडिशनल सेक्रेटरी खजाना तैनात हैं, जबकि महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग इवेलुएशन स्कूल तालीम शमीर खान भुट्टो का तबादला भी कर दिया गया है। शमीर खान भुट्टो एडिशनल सेक्रेटरी खजाना तैनात हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद लोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन महकमा स्कूल तालीम शमीर खान भुट्टो का तबादला कर दिया है। उनको इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना के अहदे पर तैनात कर दिया गया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि मुआशत दुरुस्त सिंध पर गामजन है। रफ्तार ज़्यादा बढ़ाई तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। स्ट्रीट लाइफ की 50वीं सालगिरह के मौका पर मुशीर तजारत ने स्ट्रीट लाइफ डिजिटल पोर्टल का भी आगाज़ किया है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 50वीं सालगिरह की तकरीब मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस वक्त चैलेंजेस हैं, मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है, ज्यादा रफ्तार बढ़ाई तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। Is in the right direction? Is it growing as fast as it should be? I personally think it is, in light of the financial difficulties that we're in at the moment. And all economists say that if you press the accelerator too much, we will get into a current account deficit, and that is something we have to watch on. उन्होंने कहा कि सर्विसेज एक्सपोर्ट पर तवज्जो देने की जरूरत है, सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। IT और इंश्योरेंस जैसी सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। But mashallah, 2021, for the first time in the history of the organization, State Life is paying more than 100 billion to claims to its policyholders as they fall due. इस मौके पर चेयरमैन स्टेट लाइफ शेब जावेद ने कहा कि 2021 बेहतरीन साल रहा। 100% बिजनेस ग्रोथ के साथ 100 अरब से ज्यादा प्रीमियम सार्फिन को अदा किए गए। That it deserves on our exports, and within that we have not put too much attention on exports of services, all types of services. I'm happy to say that now that has changed. Our services of IT, our exports, last year coming to the end of June, they grew by 47%.
50वीं सालगिरह के मौके पर स्टेट लाइफ ने मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल का आगाज कर दिया है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पोर्टल का इफ्तिताह किया। खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज शाह फैसल कॉलोनी ने इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेजिएट टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स बोर्ड कॉम्प्लेक्स नाज़माबाद में डायरेक्टरेट कॉलेजेस के तहत टेबल टेनिस मुकाबलों का मैदान सजा। खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज शाह फैसल कॉलोनी ने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लायंस एरिया को शिकस्त देकर चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। फातेह टीम की स्पोर्ट्स ऑफिसर और खिलाड़ियों ने जीत को खुशाइन करार देते हुए मुस्तकबिल में मजीद मेहनत के साथ जीत का तसलसल बरकरार रखने का अज़्म किया। हमने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हमने विन किया, विनर हुए, और अब आज हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भी हमने विन किया है। और बच्चियां काफ़ी दिन से तैयारी कर रही थी, कोविड के बाद इनको बहुत अच्छा मौका मिला, ये बाहर आई और खेली, अपने सलाहियतों का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी आला सानवी तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर स्पोर्ट्स तारिक इब्रार और इवेंट डायरेक्टर वसीम माजिद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन शाहजेब अहमद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 21।